بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک امیر عربی عورت کے گھر ملازمہ تھی۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ روزانہ چاروں بیٹوں کو باری باری کمرے میں بلاتی، لیکن جب وہ باہر آتے تو رو رہے ہوتے۔ پھر ایک روز میں مالکن کے کمرے میں چھپ گئی۔ جب پہلا بیٹا کمرے میں آیا تو جو میں نے دیکھا، میری تو چیخیں نکل گئیں۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ایک اچھے گھرانے میں میرا رشتہ ہو گیا۔ میرا شوہر دبئی جیسے ملک میں ہوتا تھا۔ شادی کے بعد وہ مجھے بھی ساتھ ہی لے گیا، لیکن وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ اسی لیے میں نے وہیں دبئی میں عربی عورت کے گھر ملازمت اختیار کر لی، لیکن وہاں ملازمت کرنے سے زیادہ پیسے ملتے تھے۔ مجھے کام کرتے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے۔ شروع کے کچھ عرصہ تو میں بہت ڈرتی رہتی تھی کہ کہیں مجھ سے کچھ غلط نہ ہو جائے، لیکن پھر میں اپنے کام سے مطمئن ہو گئی، کیونکہ میری مالکن بھی میرے کام سے مطمئن تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے اور ان کا شوہر نہیں تھا۔ ان کے بیٹے مختلف جگہ کام کرتے تھے۔ 2 بیٹا تو شادی شدہ تھے اور 2 اپنے گھر میں رہتے تھے جو غیر شادی شدہ تھے، لیکن کام کے سلسلے میں الگ الگ ہی رہتے تھے۔ 2 ہفتے ایک دن ہر بیٹے کو وہ بلاتی اور ان کو الگ کمرے میں لے جاتی، اور جب بھی وہ بیٹے اس کمرے سے نکلتے تو رو رہے ہوتے تھے، لیکن کبھی بھی وہ اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ مجھے بھی 2 ماہ گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ عورت کے 4 بیٹے ہیں۔ ویسے تو وہ جب گھر آتے تھے ہنستے مسکراتے، خوب گپ شپ کرتے، اور وہ عورت بھی ان کو بہت یاد کرتی، لیکن ہفتے کے مخصوص دن صرف ایک بیٹا آتا تھا اور وہ عورت ان کو لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ کچھ گھنٹے کے بعد وہ اس کے کمرے سے نکلتا تو وہ رو رہا ہوتا تھا۔ اکثر ہی میں اس بات پر حیران ہوتی تھی اور پریشان بھی کہ عورت جب کمرے سے بیٹے کے جانے کے بعد نکلتی تھی تو بہت مطمئن دکھائی دیتی تھی، بلکہ اکثر وہ خوش بھی ہوتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ مجھے کچھ معلوم تو کرنا ہی تھا، اسی لیے اس عورت پر میں نے نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس عورت کی کوئی بھی حرکت ایسی مشکوک نہیں تھی، لیکن اس نے ہفتے کے مختلف دن اپنے بیٹوں پر تقسیم کیے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ اس عورت کا بڑا بیٹا نہیں آیا اور وہ عورت بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اگر بیٹا ایک دن نہیں آیا تو اس میں اتنی کون سی بڑی بات ہے، جس چیز نے میرا تجسس زیادہ کر دیا، اور میں اس عورت کا راز جاننے کی جستجو میں لگ گئی۔ اس لیے جب اس کا دوسرا بیٹا آیا تو مجھے معلوم تھا کہ اسے لے کر وہ کمرے میں جائے گی، اس لیے میں پہلے ہی اس کمرے میں جا کر ایک الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ میں چاہتی تھی کہ اس بات سے پردہ اٹھ جائے۔ وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ وہ عورت جا کر بستر پر بیٹھی، میں انتظار میں تھی کہ اب کیا ہوگا۔ جیسے ہی اس کا بیٹا اس کے پاس گیا، میری چیخ نکل گئی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ میں کمرے میں موجود ہوں۔ اس عورت نے مجھے سختی سے ڈانٹا اور کمرے سے نکال دیا، لیکن جتنا میں نے دیکھا تھا میرے لیے یہی کافی تھا۔ کیا کوئی ماں اتنا گر سکتی ہے؟ یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ عرب خواتین کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن لگتا تھا کہ وہ سب کہانیاں ہی ہیں، بلکہ وہ تو یقیناً دوسرے لوگوں کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ بیٹوں کے ساتھ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے تو ان بیٹوں کی بے بسی بھی محسوس ہوتی ہے، جو ہر صورت میں ماں کے پاس آتے ہی ہیں۔ ان کی ماں ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی تھی، وہ چاہتی تو شادی کر سکتی تھی، اور اس مقصد کے لیے اپنے بیٹوں کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بیوہ تھی اور اچھے خاصے پیسے والی تھی۔ بچے تو سارے اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ وہ دوسری شادی کر لیتی تو کسی نے اس کو کچھ کہنا بھی نہیں تھا، لیکن کم از کم اتنا گھناؤنا کام تو نہیں کرتی۔ مجھے اس عورت سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ اس کے پاس کام بھی نہ کروں، بلکہ یہاں سے کسی طریقے سے نکل جاؤں۔ اور اس ملک میں رہنے کے بعد مجھے اس کے بارے میں معلوم تو ہو ہی گیا تھا، اس لیے میں نے اور جگہ نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں سیلز گرل کی نوکری تھی۔ تعلیم بھی کوئی خاص نہیں مانگی تھی، صرف وہاں کی زبان جاننے والی عورت چاہیے تھی۔ میں نے وہاں جا کر انٹرویو دیا اور میری قسمت اچھی کہ مجھے یہ نوکری مل بھی گئی۔ میں نے اس وقت یہاں سے نوکری چھوڑ دی اور وہاں ڈپارٹمنٹل سٹور پر نوکری کرنے لگی۔ جب اس کے پاس نوکری چھوڑی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے جو تم ہم لوگوں کو چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اتنی تنخواہ میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ لیکن میں پھر بھی تیار نہ ہوئی، کیونکہ مجھے ایسی عورت کے پاس کام ہی نہیں کرنا تھا۔ اس عورت سے نفرت کی وجہ کچھ غلط نہیں تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ماں کو کسی دیوی سے کم کا درجہ نہیں دیا جاتا، اور ماں بھی اولاد کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دیتی۔ وہ اپنی اولاد کے لیے پیار، محبت، خلوص، قربانی اور شاید ڈر کا رشتہ ہوتا ہے ماں اور بیٹے کے درمیان۔ بیٹا چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے، کبھی ماں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ ماں چاہے ناراض ہو جائے، بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کیسی عورت تھی جو اپنے بیٹوں کو بلا کر لاتی تھی
और फिर उनके साथ ऐसा घिनौना काम भी करती थी। उस औरत ने तो माँ के तकद्दुस को पामाल कर दिया था, तो फिर मैं भला उस औरत के पास काम क्यों करती। इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। शुरू में तो मुझे बहुत मुश्किलात पेश आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं वहाँ भी एडजस्ट हो गई, क्योंकि एक तो यहाँ काम करने आई थी, पैसा कमाने आई थी, और उसके लिए मुझे मेहनत तो करनी ही थी। मैं जहाँ काम करती थी ये किसी एक मालिक का था, जिसकी पूरी एक स्टोर की चेन थी। यहाँ काम करते मुझे 6 माह हो चुके थे। मैंने अभी तक अपने बॉस को नहीं देखा था। यहाँ का मैनेजर सारे मामलात देखता था। लड़कियों ने मुझे बताया कि उन्होंने भी आज तक बॉस को नहीं देखा, क्योंकि हमारे बॉस इस छोटे से स्टोर पर आते ही नहीं। उनका एक पूरा स्टोर का चेन है जो दुबई में फैला हुआ है, इसलिए उनके पास वक्त नहीं होता कि एक एक स्टोर में जाकर सारे मामलात देखें। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर उनको देखना तो चाहिए, जो अपनी ही स्टोर में एक दफ़ा भी नहीं आया। लेकिन इस तजस्सुस में मैं क्या कर सकती थी। लड़कियां मुझसे पूछती कि तुम यहाँ से पहले कहाँ काम करती, तो मैं यही कहती कि मैं यहाँ से पहले एक और स्टोर में काम करती थी। मैं किसी को नहीं बताना चाहती थी कि मैं किसी के घर मुलाजमा थी और वो कैसी थी, क्योंकि मेरा ज़मीर ही गवारा नहीं करता था कि किसी माँ का ऐसा किरदार बयान करूं। एक दिन स्टोर पहुंची तो सबको ही अफरा तफरी के आलम में देखा। पूछने पर मालूम हुआ कि वो सब इसलिए बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं कि आज स्टोर के बॉस आने वाले हैं और वो अरसे बाद अपने स्टोर में आने लगे हैं, तो उनका इस्तकबाल बहुत अच्छे हालत में होना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक थी। मैं भी अपना काम करने लगी। दोपहर में बॉस आए तो फर्दन सबसे तारुफ करने लगी। जब मेरे डिपार्टमेंट में पहुंचे तो उन्हें देखकर मुझे यूं लगा कि जैसे स्टोर की छत मेरे सर पर आ गई है। वो बॉस उसी औरत का सबसे बड़ा बेटा था। मुझे देखकर उन्हें भी हैरत हुई, लेकिन किसी के सामने उन्होंने बात नहीं की और ना ही अपनी हैरत जाहिर की। स्टोर का विजिट करके वो चले गए, लेकिन मुझे अजीब तरह की फिक्र शुरू हो गई कि मैं जिस औरत से भागकर यहाँ आई हूँ और जिससे मैं इतनी शदीद नफरत करती हूँ, उसके बेटे के अंडर मैं काम करती हूँ। ये बात मुझे पहले मालूम होनी चाहिए थी। यहाँ काम करना भी मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि मुझे जहाँ उस औरत से नफरत थी वहाँ उसके बेटों से भी नफरत थी। वो चारों मिलकर माँ को रोक सकते थे और कुछ नहीं तो माँ की शादी तो करवा ही सकते थे, लेकिन वो इतनी जवान होने के बावजूद भी अपनी माँ को सीधे रास्ते पे नहीं ला सके थे। उनका साथ देते थे, चाहे मजबूरी में ही सही, लेकिन मर्द कभी मजबूर नहीं होता। मैं जो बहुत खुश थी अपनी जॉब से और मज़े में थी, खुद को गैर महफूज महसूस करने लगी। मुझे अपनी आमदनी भी हलाल नहीं लगती थी और मैं दूसरी नौकरी की तलाश में लग गई थी। मुझे इतनी जल्दी दूसरी नौकरी नहीं मिल सकती थी, ये बात मैं जानती थी कि मेरे पास वाजिबी सी तालीम थी। कोई बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता तो मैं नहीं थी, लेकिन कोशिश तो कर सकती थी। और जल्द ही मुझे एक और जगह नौकरी मिल गई। वहाँ पर मुझे वेट्रेस की नौकरी मिली थी। काम तो अच्छा नहीं था, और अगर पाकिस्तान में होते तो शायद मैं ये काम कभी भी ना करती, लेकिन यहाँ इस मुल्क में मुझे जानता ही कौन था। और यहाँ वैसे भी बहुत सी ख़वातीन वेट्रेस की नौकरी करती थी, इसलिए मैं एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में जॉब पर आ गई। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी तालीम ना होने की वजह से मुझे VIP हॉल में तो जगह ना मिली, लेकिन आम हॉल की नौकरी मुझे मिल गई। जहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि औरत की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। मैं आम हॉल में होती थी, इसलिए रंग बिरंगे लोग वहाँ आते और उनमें हर तरह के लोग होते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो आम कपड़ों में होने के बावजूद भी इज्जत और एहतराम से बात किया करते थे, और कुछ ऐसे होते थे जिनको लगता था कि हम ऑर्डर लेने आए हैं तो अपना आप पेश कर रहे हैं। नौकरी पहले वाली 2 नौकरियों के मुकाबले में बहुत मुश्किल थी। तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल था, और अपनी इज्जत बचा कर काम करना तो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जो एक चीज़ दिमाग में थी कि वो माँ बेटा गलत हैं और उनके पास नौकरी करके मैं हराम कमा रही हूँ, वो चीज़ नहीं थी। दिल मुतमईन था, इसलिए मैं यहाँ पर भी नौकरी कर रही थी। मुश्किलात ज़रूर थी, कभी कभार खुद को बचाना मुश्किल हो जाता था, लेकिन हमारे होटल का मैनेजर अच्छा था। ऐसे किसी भी मौके पर पहुँच जाता था और ख़ुद ही उस ग्राहक से निपट लिया करता था। मुझे यहाँ काम करते हुए 2 माह हो चुके थे और किसी हद तक मैं यहाँ के माहौल को समझ चुकी थी। जिस तरह के लोग होते थे उस तरीके से ही उनको पेश आना शुरू हो गई थी। काम में बेहतरी आने की वजह से ज़्यादा मसाइल का भी सामना नहीं करना पड़ता था, और जो बदतमीज़ किस्म के ग्राहक होते थे उनसे निपटना भी मुझे आ गया था। एक दिन जब मैं ऑर्डर लेकर सर्व करने जा रही थी तो मैंने देखा कि उसी होटल में वो औरत अपने सबसे छोटे बेटे के साथ दाखिल हुई। उसे देखने के बाद मेरी हिम्मत न हुई कि मैं इस टेबल पर जाकर उनसे ऑर्डर लूं। मैं उनका सामना ही नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी एक दूसरी दोस्त को वहाँ पर ऑर्डर लेने के लिए भेज दिया और ख़ुद उससे दूर
दूसरे टेबल्स को सर्विस देने लगी। वो औरत बहुत खुश लग रही थी और खुश तो उसका बेटा भी लग रहा था। ऐसे लगता था जैसे वो कोई बहुत बड़ी खुशी सेलिब्रेट करने वाली हो, क्योंकि उन्होंने अपनी टेबल पर एक केक मंगवाया था और थोड़ी देर बाद ही उस औरत के बाकी तीनों बेटे भी आ गए। उन्होंने मिलकर केक काटा और वहाँ ही सेलिब्रेशन शुरू कर दी। मुझे देखकर गुस्सा आता था कि जाने अब इस औरत ने ऐसा क्या गुल खिला दिया है कि अपने बेटों को लेकर सेलिब्रेशन के लिए आ गई है। जब इंसान के दिमाग में किसी का गलत इमेज बन जाए तो उसके हर अमल को गलत नज़र से देखता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वो लोग तो सेलिब्रेशन करके चले गए। बाद में जिसने उसके टेबल पर सर्विस दी थी उस लड़की से मालूम हुआ कि इस लड़के की आज बर्थडे थी, जिसके साथ उसकी माँ आई थी और यहाँ बैठकर सब लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट की। और मज़े की बात यह है कि उसकी बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उसको उसकी माँ ने अपने साथ एक हफ्ता रहने की ऑफर दी है। उसकी तरफ से एक तोहफा था। बाकी सब भी हैरान थे, लेकिन मेरी हैरत का अलग। वो सब तो इसलिए हैरान थी कि एक बेटे का माँ के साथ रहना ये कैसा तोहफा है, जबकि मैं तो इसलिए हैरान थी कि वो औरत अपने सब बेटों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है और उसने हफ्ते के दिन अपने बेटों पर तकसीम कर दिए हैं। हर दिन उसका एक बेटा आता है। अगर वो बेटे को हर वक्त अपने साथ रखेगी तो बाकी के बेटों को क्या जवाब देगी? उनको अपने घर में नहीं बुलाएगी। वो मामूल के मुताबिक उसके बाकी बेटे भी आएंगे तो क्या छोटे बेटे को पता नहीं चलेगा कि उनकी माँ सब भाइयों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है? तो क्या उस औरत का राज नहीं खुलेगा? इस बारे में शदीद तजस्सुस होने लगा कि अब वो औरत क्या करेगी। लेकिन मैं तो खुद उसके घर से नौकरी छोड़ कर आई थी, इसलिए मालूम नहीं कर सकती थी कि वो क्या करेगी। लेकिन कहते हैं कि तजस्सुस बहुत बुरी चीज़ है, इंसान से हर गलत तरीके का काम भी करवा लेती है, क्योंकि इंसान के जहन में तजस्सुस जिस तरह बैठ जाए तो जब तक ख़त्म ना हो उससे सुकून नहीं मिलता। और हम पाकिस्तानी कौम तो वैसे भी इस फन में बहुत ताक हैं। इसलिए मैंने उस फ्लैट के साथ एक दूसरे फ्लैट में काम करने वाली औरत, जो कि मेरी दोस्त भी थी, उसको फ़ोन किया। उसको उस औरत का राज तो नहीं बताया, लेकिन सिर्फ इतना कहा कि देखना इस हफ्ते भी उसके बेटे आते हैं कि नहीं। मैंने बहाना कर दिया कि बाद में तुम्हें उसकी वजह बताऊंगी, बस तुम नज़र रखना। एक हफ्ते के बाद उसने मुझे बताया कि छोटा बेटा उसके साथ था, बाकी तो कोई बेटा नहीं आया। तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि यकीनन ये औरत कोई गलत खेल खेल रही है। इसलिए बाकी बेटों को ये कहकर मना कर दिया होगा कि तुम्हारा छोटा भाई इधर ही है, इसलिए तुम लोग मत आना। इसका मतलब है कि वो बहुत तेज़ है। मैंने अपनी दोस्त को तो चक्कर दे दिया, उसको कुछ नहीं बताया, लेकिन खुद उस औरत की मक्कारी पर मैं हैरान थी कि वो कितनी मक्कार औरत है, जो इतनी चालाकी और सफाई से सारा काम कर रही है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी आखिर वो अपने बेटों को क्यों इस्तेमाल कर रही है। क्या उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है? ये तो ऐसा मुल्क है जहाँ कोई इस बात पर किसी को रोक टोक भी नहीं करेगा। आखिर क्यों अपनी बेटों के पीछे है? और उसके 2 शादीशुदा बेटे हैं, उनकी बीवियाँ कुछ नहीं कहती क्या? लेकिन मैं अपने काम से मुतमईन थी, इसलिए ज़्यादा उस औरत की खोज नहीं लगाती थी। मैं काम कर रही थी कि एक दिन मुझे खबर मिली कि हमारा होटल सेल हो गया है और अब इसको किसी और शख्स ने ख़रीद लिया है। ये तो मालूम नहीं हुआ कि किसने ख़रीदा है, लेकिन जो शख्स आया उसने हम सबको यूनिफॉर्म चेंज किया और अब का यूनिफॉर्म पर्दे वाला था। थी तो पैंट शर्ट ही, लेकिन पूरी पैंट और पूरे बाजू की शर्ट, उसके साथ स्टॉलर भी था। वो आप पर मुनहसर है कि सर पर लो या गले में डालो। इससे लगता था कि आने वाला कोई बहुत ही अच्छा इंसान है और होटल के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमें बदतमीज़ किस्म के ग्राहकों को जो मसले मसाइल थे वो यकीनन हल हो जाएंगे, और ये मेरे लिए तो एक बहुत ही अच्छी खबर थी। मुझे शिद्दत से इंतज़ार था कि ये नया बॉस जो भी है मैं उससे मिलूंगी और बात करूंगी। ये तो एक फितरी बात है, इंसान को जो चीज़ पसंद होती है वो कहीं मिल जाए तो उसका जी चाहता है कि उस शख्स को मिले, उसका शुक्रिया अदा करें। जब होटल में बहुत चेंज आ गई और नए बॉस के मुताबिक हर चीज़ हो गई तो एक दिन बॉस चेकिंग के लिए आया और उसको देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसी औरत का दूसरा बेटा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये तीसरी नौकरी थी और अभी मैं इसमें सेटल हुई थी। जिससे मैं मिलने को तैयार थी कि वो मुझे बहुत ही अच्छा इंसान लग रहा था, लेकिन ये भी उसी औरत का बेटा होगा, ये तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। जाने क्या बात थी कि कुदरत मुझे उठाकर उसी खानदान से मिलवा रही थी। तो मैंने सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक दफ़ा जाकर इस औरत से खुले तरीके से बात कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से छोड़कर कहीं और जाऊँगी तो भी नहीं जानती कि वो औरत खुद बहुत अमीर है तो उसके सारे बेटे भी बेतहाशा अमीर हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। इसलिए मैंने दिल में तहिया कर लिया कि मैं ऐसा ही करूँगी। लेकिन इस बॉस ने मुझे वहाँ देखा तो पहचान लिया और उसने मुझे खुद ही ऑफिस में बुला लिया।
उसने मुझे कहा कि आप हमारे घर से काम छोड़कर आई थीं, तो मुझे हैरत हुई थी कि क्या वजह है कि आप काम छोड़कर जा रही हैं, क्योंकि आप एक दूसरे मुल्क में हैं और मेरी माँ के घर में बहुत ज़्यादा महफूज थी। लेकिन उसके बाद आप मेरे भाई के स्टोर पर काम कर रही थी, लेकिन भाई को देखने के बाद आप वहाँ से भी काम छोड़कर आ गई। इस बात ने हम सबको तजस्सुस में मुब्तला कर दिया था। हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की और बहुत खुशी की बात है कि आप मुझे मिल गई हैं। आप हमें बताएं कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि आप हमसे भागती फिर रही हैं। अगर कोई मसला है तो आप हमें बता सकती हैं कि आपके शौहर से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो हमारे यहाँ ड्राइवर के तौर पे काम करते थे और उनकी मौत का हमें बहुत अफसोस है और हम नहीं चाहते कि उनकी बीवी इस मुल्क में मुश्किल से गुजारा करें। मैंने उनसे कहा कि पूछना तो मैं भी बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके घर आकर मालूम कर सकती हूँ वो सारी बात। उसने मुझे खुले दिल से इजाज़त दे दी और बताया कि संडे को सारे भाई घर पर होंगे, माँ के घर पे, इसलिए मैं वहाँ आकर बात कर सकती हूँ। मुझे शिद्दत से संडे का इंतज़ार था और जब मैं उनके घर चली गई वहाँ सब मौजूद थे और अक्सर संडे को ऐसा होता था कि चारों भाई यहाँ आया करते थे। आज भी मुझे देखकर वो औरत बहुत खुश हुई। उसने कहा कि तुम्हें हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम तो गायब ही हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपकी कुछ आदत अजीब लगी थी, इसलिए मैं आपको छोड़कर चली गई थी। मुझे लगता था कि मेरी कमाई हलाल नहीं है। मुझे मालूम है मैं यहाँ बहुत महफूज थी, अगर मैं कहती तो मेरी तनख्वाह भी अच्छी हो जाती, लेकिन मैं छोड़ के किसी और वजह से गई थी। वो आपसे मालूम करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे पूछो क्या वजह है, मैं तुम्हारी बातों का जवाब दूंगी। मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आपके बेटों के सामने सवाल कर दूं? तो उन्होंने कहा कि तुम कोई भी सवाल मेरे बेटों के सामने कर सकती हो। मेरा ऐसा कोई राज या पर्दा नहीं है जो मेरे बेटों से छुपा हुआ हो। मैंने फिर भी ढके छुपे अंदाज में पूछा कि वो उनको ऐसा क्या कहती हैं कि वो रोते हुए कमरे से निकलते हैं। और फिर उस दिन जो मैंने देखा कमरे में, आप मुझे इन सारी चीज़ों की वजाहत करते। तो ये सब सुनकर वो हंसने लगी और कहने लगी कि इतनी सी बात थी, तो ये बात तो आप मुझसे पहले भी पूछ सकती थी। मैं पहले ही आपको बता देती कि मसला ये है कि मेरे चारों बेटे अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब ज़रूर हैं, लेकिन मैंने उनके बाप से वादा किया था कि मैं उनको दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी कामयाब बनाने का पूरा कोशिश करूँगी। और इस मकसद के लिए ये इतने बड़े हो गए हैं, तब भी उनको खुद कुरान की तफसीर पढ़ाती हूँ। उनसे रोज़ाना नमाज क्या पूछती हूँ, तहज्जुद के बारे में सवाल करती हूँ। उन सब में मुकाबले होते हैं, कौन तहज्जुद के नवाफिल ज़्यादा पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज पूरी करेगा। इस तरह की बातें की जाती हैं और अलग अलग दिन मैं इसलिए बुलाती हूँ कि पूरी तवज्जो से बच्चों को पढ़ा सकूँ। वो रोते हुए कमरे से इसलिए निकलते हैं कि कुरान जिसके दिल पर असर कर जाए वो कुरान की ही हैबत सह नहीं सकता। खुदा का फरमान है कि अगर मैं उस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करता तो वो भी टूट जाते। और वो कुरान जो ये समझते हैं कि जब उनके दिलों पर असर करता है तो आंसू खुद निकलते हैं। और उस दिन जो तुमने देखा तो यही था कि दरवाज़ा बंद करने के फ़ौरन बाद ही मेरा बेटा मेरे गले लग गया और तुमने गलत समझ लिया। वजह ये थी कि वो दरवाज़ा बंद करना इस बात की अलामत होती है कि उनकी माँ नहीं उनकी टीचर हूँ। और मेरा बेटा खुशी से मेरे गले लगा था क्योंकि उस हफ्ते में वो विनर था। उसने सबसे ज़्यादा तहज्जुद के नवाफिल पढ़े थे और पूरा हफ्ता एक भी नमाज कज़ा नहीं की थी। उसने नमाजें भी तकबीर अव्वल के साथ पढ़ी थी। वो खुशी से मेरे गले लगा था। मुझे मालूम था कि मेरा बेटा बहुत खुश है, इसलिए मैंने उसे मना नहीं किया और तुमने इतनी सी बात देखकर न जाने क्या समझ लिया। मैंने जब उस औरत की यह बात सुनी और मुझे ये पता लगा तो मैं उनकी अजमत के आगे खुद को बहुत छोटा समझने लगी कि मेरी सोच कितनी छोटी थी और मैं उस औरत पर शक कर रही थी। उसको मुजरिम समझ रही थी जो इस उम्र में भी अपने बेटों का इतना ख्याल रखती है, क्योंकि आखिरत के लिए तैयारियां करवा रही है। और उनके बेटों से भी माफ़ी मांगी। सब लोगों ने खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया। मैं फिर उनके घर में मुलाजमत करने लगी क्योंकि उन्होंने मुझे अपने घर का फ़र्द ही बना लिया था। वो चारों मुझे बहन कहते थे और उनके साथ साथ एक दिन मेरे लिए भी मुकर्रर हो गया था। मैं भी कुरान की तफसीर समझ रही थी और अब जब खुद मेरी आंखों में आंसू आते थे तो मुझे उन बच्चों की कैफियत का एहसास होता था। और मैं तो अपनी हर सांस के साथ शुक्र अदा करती थी कि मुझे इसी दुनिया में कितने अच्छे लोग मिल गए हैं जो मेरी आखिरत संवारने का बायस बन गए हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।